There are joins actually, type of joins. Okay, I will just use this one for better clarification. Joins in SQL. So yeah, this is the joins in the SQL. Inner join return only rows which matching values in the both table. Okay, I will take this snap of this. Left join returns all rows from the left tables and match rows from the right table. Returns all rows from the right tables, match rows from the left tables. Full join returns all rows when there is match in either table. So this all things we are not using in SQL. Only this left outer join, left join or inner join. This only we can use. So these all the syntax they have given in SQL. So like this, I will copy this. Okay, from here I can. So take it up copy. Okay, I will explain it in a second. So joins. So joins have two parts: inner join and left outer join. Left outer. Suppose uh, there is you have created sales order from a T code A01. You know, right? A01 sales order creation T code. Correct. So once you create the sales order from A01, data will created in VBAK and VBAP and respective some more tables, flow tables, EBF, EBF, suppose EBF, EBF. So this is header table, and this is item table, and this is flow, document flow. So in header, there will be only one record for one sales order, and item there will be n number of record, like it will be minimum one or maximum n, right? Any line item you can create. So what happened in this, you have to put inner join on the key field. Suppose this is header and item. Okay. Suppose you are taking document flow. In document flow, there are for this sales order, there will be billing and invoice. Correct. Suppose sales order you have created and billing is not generated. Okay, after next day it was generated, right? So record will be there. Here also it will not generate first time, second time it will generate, right? So like that. So this is compulsory. Like you know that you know the data. If header will be there, then item already at least one line item it should be there, right? You know already. So inner join you can put. It will not. It will never fail. Actually, it will never fail. Okay, because you know the data, right? But some scenario you in report you want sales order,
billing and invoice. So you want billing information also. So at that time you have to put left outer join, left outer join, because in left side there will be header and item. And in header you are sure like there will be a one record, and there might be billing record will be there or it should not be there. So if you will put inner join, then none of record it will display in your output. So you want the report to be generated based on sales based on sales to check billing and invoice information. Like this, you want some report invoice information. Suppose there is 10, there is sales 10, sales 10 sales order, and there is billing about suppose 7, and invoice is generated for its sales for 5. Now you want a report only for sales order, and you can display billing was generated. And some cases you want only invoice. Suppose here you will in report, right? In a report, you have put some radio button, right? Report this sales. So just you can put a report based on report reports for sales billing of invoice information. Now you put some radio button RB1 in selection screen is for sales. How many sales was there, right? And RB2 based on invoice and RB3 radio button, right? So here you want some information about billing. So what happened? Here output will be generated of 10. Here invoice 5 record only should display, and here you have to display 7. Alright, like this report you want. So in this scenario, like so this scenario it should fit for this scenario. Keep in mind this scenario, and you have to write the logic select queries. So in select queries, it should be 10 line item, total 10 line item in internal table. In internal table, it should be 10 line item, 10 line item with all details. So like that, you can, as per radio button, you can filter it out later on. But internal tables, you want total 10 line items. So you will write select query, single select queries for this. So you know already this one. So whatever the fields you will take from billing table and invoice table, for that you will put left outer join, because left outer it will consider the left hand side and right hand and left hand side. If it's the left hand side, you know already left outer side. If it is 0, well also it will take 10 total line item. If you will put this inner join, right, what will happen? Only 5 recording will display. 5 record, because for sales order 5, only 5 invoice was generated. This 2 line item will not come in the internal table, and this 5 line item will not come in internal table. Means total 5 line item will not come in internal table.
That's why you are putting left outer join. If you are not sure that right hand side having the data or not, then you have to put left outer join. This is the concept. Or inner joins, how it works. Now you got right. Hello. Hello. Yeah. Got right. Yeah. So now, so why association can? So association, suppose, because nowadays any external APIs or data services and many technologies, many tools are calling what they are calling serious flow. So what happened while calling serious flow? Suppose I will take one Fury apps, Fury app. I will show you when I will go with the Fury application. There is sales fulfillment apps. Apps. If you will go in that apps, click on that apps, there will be some graph. It will show you the graph based on the sales order, and there will be some below radio buttons. If you will click on sales order, then it will select and display the sales order details. If you will click on billing information, then it will display the billing information. If you click on the invoice, means all department, multiple departments having this sales fulfillment issue. According to that, the means basis and security team will provide the access like billing users, whatever the billings users are there, right? They can access only the billing data like that, this app. So there is a single apps. Single app is calling this CDS view multiple times, right? So like association came actually in this picture. How I will explain you. Okay, let me say I have taken one document and this one. This one is invoice detail. This one is delivery detail. This one is sales detail. This is customer detail. This is one is material detail. So there is a plan one, plan two, plan three, plan four. No? Everyone don't have everything access, right? So there is all these um all this functionality they are calling one CDS, and this one CDS view is capable of displaying all these details. But authorization they can do as per their like how they want. So how you will suppose user will click on sales order. So it should click the database sales order data, sales order tables like BBAK, BBAP. If user will click invoice detail, then respective tables only it should, not all detail it should. It makes sense, right? Correct? Hello. Hello. Here, what happened in inner zone and left outer zone? If there is um, output in table, right? Sales, billing, and invoice. So all data you are extracting from one single select queries, and it is like you have for each click means whenever you execute this program, it will take all details, right? There is no partiality. But what happened in CDS view? In CDS view, if user will click on sales, so this data only it will
hit and it will display. In billing, this data it will hit only. In invoice, only this data. Like that, it will means demand basis. I call it demand basis. When demand is came, I want the billing information. Then only billing information table will hit and it will display. This is the concept of that's why association came. So there will be mapping actually, and mapping with the alias name. So I have made one of yesterday also I have created, but what I have done, I just actually whenever you executed it, right, then you have to, yesterday this one I have created, right. I just uh, came out from my mind. So whenever you execute it, see here, only the whatever you have mentioned in the field list, it will display here, and there is a mapping actually. This is the list of association. Now, if the user will click, I want to display the item detail of this one, right? First one. So it will come like this. I will click this. So what happened? Okay, let me take header only. No items. Header. All is header information. Only item. Uh, what is called association. This is called association of item. Right. Good. So item having start and header would be one. So now I will execute this. See here, there is a single line item because header is one only. Now, if I will go in this item, there, right? So now you can see there is two line item, correct? Hello? Yeah, so Postner 10 and Postner 2 with all the fields. Like this association works actually. So now I am going. There is no association with, and one more thing actually. Close this. If you are defining the association, so your base table will be this, right? Source table will be BBAP. So whenever you are defining on join condition, then you have to compare with your source table. Here it's source table only. Okay. Within the association, you can't join it. If you want to join, there is some other process to do the joining. So let me come with this. And one more, I have yesterday, I created this one, right? This one, what we got this yesterday. Material. Okay. Again. Okay, let me execute. This is the description. If I want to see the association, there is three association.
there will be for multiple one, we have this star. Let us complete like this. So here, what I will do, yes. Okay. This one not needed. Yeah, now I will activate it. Now I will check this. Yeah, there is only one material. Now I will go with the association. So with different language, we have 3 line item for this material. Now, if you want to filter it out with the language, if you want to filter, then you have to give like this. English. Why we are not doing this? Actually, this is not recommended actually, not to do this. If you want to do, then you have to create another CDS view on top of this. This one is recommended, but I want why I will say, suppose there is material, right? Material number. You want a report for like to display the stock, right? Stock of the material. Suppose there is a material 11 and there is a stock 4, right? Now you use the views. In view, you have not filtered the language, and also you are not sure with the language this language is available or not. Basically, we can use English language, but like this is this example I'm telling. So suppose there is a line item and it is CDS view is used and there is like 3 languages. There will be multiple languages, right, for one material. Suppose there is a France, there is some Spanish, multiple. So this will be four four types will include, and if you are doing some summation, then this summation will come 12. So that is wrong actually. That's why. That's why here we are not using it. Basically, if you want, like you have to display only source data here. Source data here. If you want to display item data, then it will be like if you want like you have to be sure there should be only 2. Beyond 2, it should not use actually, because data will be mismatched. I will show you here. Okay, let me this. Let me run this and show you how many report it is. So based on the requirement and analysis, like you have to write your log. If you are sure, then you can write. If you are not sure, then you have to you need to avoid to write. Okay. See, now it is coming single line item because you have done filter. If you are not doing filter, then it will come 3 line item and the report will mismatch. Suppose I will explain in this. Now you are taking amount from header, right? Header table, there is a amount. Now header table, there is a amount. What is the amount? 2.5. Correct? This is correct amount. Now, if you will include your item portioner. Suppose you have included, right? So what will happen?
Here it is mentioning actually. Multiple makers at this time. Search help assigning personal is not equipped with the base object. Association item can modify with the cardinality for the result set. Right. Yeah, it is not activated, I think so. See now, for line portioner, this amount you have taken from header and it is repeated. Now the amount will be, total amount will be 5, right? So this one is wrong actually. But you will get 2 line item. Otherwise, you have no need to take header information, header amount. If you like, you can just where is this one? This one. Where when yeah, this one, right? So if you are including your item detail here, this one is ad hoc association. This is called ad hoc association. Yeah, this one I have explained is the ad hoc association, right? And one more thing I forgot to tell you. This one is right. This association is in public. Means anyone can use it right now. And this one also public. Public association. So this is public association and ad hoc association. Ad hoc means you are in header, you are adding the item, but you need to be sure like you don't need to use this. You this cannot may be repeated because can be repeated. If you are doing sum in the net WR, then it will be wrong when you are using item. So you have no need to use this, and you can use like based on the requirement how you want, right? So like here some there, right? 1 minute, I will take this field, some amount field. This is amount field. I will take some other amount field. Yes, T means I want to say like if you want a report based on the item detail, then you can put. Based on the header detail, then no need to put. Based on the header detail, then header detail you can display here with the selected field, and they will run this views, and there will be item in item they can display with the association. Yeah, net yeah, is the local amount. So here it is showing error, right? Why it is showing error? Because of this. I have before using the amount field, I have to use some currency code. Yeah, because it's there. Okay. Now if I will execute it,
and run it. And okay, this one also we can't use. Yeah, see here, like this. So here, this based on the item, this report is displayed. Owner is duplicate also. Okay. So here we can get the total amount from the item. So this report is good. Based on your requirement, you can do it. And this is also association. If you want some more detail, the item detail, then you can get it here. So why it is 4 times? Okay. Hello. Hello. Till now you got association. Yes, Uncle, yeah. Correct, right? Yes. Yesterday you got it, but today you got right. Hmm. Yes. Correct, right? Okay. So here is more one example. In join, there is one, two, three, four fields. Yes. Okay. So here join. If you are doing join, right? Then sales order detail, delivery detail, material detail, customer detail. All detail they are getting in one internal table, and all detail it is hitting in the database, and unnecessary it is occupying the memory, and also like slow also performance issue. But CDS view here you can see easy join on demand. Like if user will click on sales order detail, right? Then it will display the sales order report, because at a time one user can do only one thing, right? He can't uh, take the detail of sales order also, delivery detail also, material details. At a time, three operation he can't do. Only one operation he can do. Correct. So association came. If he will click on the customer detail, it will go to customer detail, and it will display the detail of. Now, from few of the example I have created also yesterday, one is on that time. Uh, this is one of the. I'm just checking. I have missed anything or not. Left outer join. You can try this. Okay, left outer join to one join. And this one I also covered in this, but you can, if you will try, then only you can able to remember. Otherwise, you will forget, because I also forget sometimes. On that day, I have explained, yeah, but I have remembered. But again, I have to go to practical and to show you, right? Too many, yeah, too many. It will just give all the details from header and item detail. This is the association. I have yeah, on the day only I have told you, like whenever you are creating association in backend, close this. In backend it will be winner join only. So here you are doing association with the item tables. So it is displaying this, and left outer join with VBAP. System will taking this care condition. This is by default. This is email.
if you will comment all these things, suppose I will comment this in this. Yeah, this I will remove this. Now I will activate it. Okay. Now from header only. So you can say that you once only say so that do not, and there will be item that you can see here. The full line item. Also, you have seen when we used item detailing your header information. This is duplicate, right? That one I will explain right now. But my main motivation to display you the SQL query here. See here header. From the header it is taking, right? Header. There is no SQL generated for item like inner join something. It is not generated. So this is the beauty of association. Yeah. Okay. Yeah. Now coming to this one. So I have created one association with all actually. So here from BVAK there is a single record, and BVAP there will be multiple record, and KNA1 there will be one customer for one there is in BVAK there is one customer. So for one customer there will be one customer line item in KNA1. So 1:1 relation. And MAKT also there will be multiple languages, right? We will get problem here only. We have to carefully we can use this. Here I have used the projection. Okay, why I have used the projection? Let me remove this. Now our base table is source table is BBAK. So we are doing on condition with BBAK only for this BBAP and KUNR because okay, 1 minute. Control Shift A. Also, you can check like A and A1. How? What is the key field? Okay. Control this. Close to know that, right? Once rows. Okay. Now Control Shift A. A N A. Sure, what shortcut you use there? See here, Kunar is the key field. Kunar is the key field.
Here also they are doing foreign key relationship between 05. You are asking me something? What shortcut do you use there to search PN11? Sorry, voice is not clear. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? हेलो। हेलो, यस, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आपने भी PN11 सर्च किया था ना, वो कौन सा शॉर्टकट यूज किया था? KNA1 मैंने सर्च किया था, राइट? अभी मैंने हम्म, टेबल और शॉर्ट की वही कंट्रोल शिफ्ट ए। शिफ्ट ए, ओके, अच्छा। शिफ्ट ए वो, हाँ कंट्रोल हम्म, शिफ्ट ए। इसमें आप जाओगे, ये टेबल है आपका। ये टेबल में आप, हाँ कुनार आपको की फील्ड है, राइट? आप ऐसे भी पता लगा सकते हो की फील्ड क्या है। और यहाँ पे जब कहना की फील्ड कुनार है, तो हम कुनार, कुनार जो है वो आपको पीवी एके में भी अवेलेबल है, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। और आपने ये इधर एसोसिएशन 1 स्टार, कहीं पे 1 1, कहीं पे 1 स्टार यूज किया, इनका मतलब क्या मतलब? जैसे कि NA1 की फील्ड है इसलिए उसके लिए 1 स्टार 1 1 यूज किया। ये बीबीएपी के लिए, राइट? स्टार हम्म, स्टार, करेक्ट। इसके हाँ, लिए आपको 1:1 है, रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा एक्चुअली? ओके, ठीक है। इनिशियली देखेंगे कि आ रहे हैं तो उनको दे देंगे वो रिपोर्ट, फिर आप मैच कर लो सही चल रहा है। नहीं बस एक तो फिगर ही देखना है। ट्रस्ट, राइट? अभी मैं इधर पे करता हूँ। एक्चुअली हम लोग को पहले से मालूम रहता है कि पीवीए पे और बीबीएपी में रिलेशनशिप क्या है, 1:स्टार है। यहाँ पे सिंगल के साथ ही लगा सकता हूँ मैं। अच्छा, आइटम है, तो आइटम में मल्टीपल्स रहेंगे, तो हम लोग को पता है। और यहाँ पे KN1 में कस्टमर, एक ही कस्टमर रहेगा, राइट? ये मास्टर डाटा है कस्टमर। एक कस्टमर के लिए आपको बीबीएके में एक ओके, और वो आपको पता रहना चाहिए, आप जब भी ज्वाइन डालो तो। सो BA03 ये की कोड है सेल्स ऑर्डर का क्रिएट करने का। ये 01 है, ये 03 में डिस्प्ले कर सकती है, कभी रन नहीं हुआ है। क्या क्या करता हूँ, C16 में जाता हूँ, BBAK। देखिए इसमें सेल्स ऑर्डर है, सिंगल है, राइट? यहाँ पे एक है आपको। ठीक है, ये सेल्स ऑर्डर है, मान लीजिए आपका, मान लीजिए ये सेल्स ऑर्डर, राइट? अब ये सेल्स, जाओगे हेडर टेबल में, आपको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, करेक्ट? और इसका आपको KN1 जाओगे, ये टूनार, टूनार में जाओगे, ये कस्टमर है, सोल्ड टू पार्टी, जिसको ये सामान बेचा गया है, करेक्ट? अब ये कस्टमर को आप जाओगे ऐसे स्कीम में, के
NA1 में जाओगे तो आपको पता है ये आपको सिंगल रहेगा, 1-to-1 रिलेशन। देखिए एक ही की फील्ड है इसका, राइट। ये फील्ड एक ही है तो एक ही मिलेगा रिकॉर्ड, राइट। तो 1-to-1 रिलेशन रहेगा इसका BBAK के साथ, राइट। अब BBAP में क्या रहेगा, आपको जब ये आप सेल्स ऑर्डर जब डालो इसमें दो लाइन आइटम, दो की फील्ड है, राइट। इसमें मल्टीपल्स मिलेंगे, मल्टीपल्स। ये सेल्स ऑर्डर है, ये सेल्स ऑर्डर डाला, इसमें मल्टीपल लाइन आइटम मिलेगा, करेक्ट। अभी तो ये 10 लाइन आइटम के लिए है, लेकिन मल्टीपल लाइन आइटम रहेंगे, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा मल्टीपल रह सकता है, राइट। सो ये है। अभी जैसे BBAK में आप जाओगे, BBAK में जाओगे, you're going to BBAK and you are giving sales order, here आपको मटेरियल नंबर नहीं मिलेगा, मालूम है ना चीज। TNR मटेरियल नंबर नहीं मिलेगा ये, मटेरियल नंबर इस टेबल में नहीं होता है ना? हाँ, BBAK आइटम टेबल में मिलता है, करेक्ट। हाँ। और इसमें मटेरियल नंबर आपको अलग अलग रह सकता है, राइट। इसके लिए ये मटेरियल है, करेक्ट। TG14 मटेरियल नंबर है, करेक्ट। अभी ये मटेरियल जो है इसका, ये मटेरियल जो है, अब इसको 12 में जाएंगे आप, क्या मिलेगा आपको, सिंगल 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 मिलेगा आपको, सिंगल मटेरियल मिलेगा आपको, 1-to-1 रिलेशन हो जाएगा आपको, करेक्ट। BBAP से 12 का 1-to-1 रिलेशन होगा, लेकिन MAKT है, यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट टेबल। हाँ, अभी टेक्स्ट टेबल पे जाते हैं, MAKT नीचे ही उसका है MAKT लिखा हुआ है। टेक्स्ट टेबल में जब आप ये मटेरियल डालते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मिलता है, ये 1 to मेनी हो गया, करेक्ट, माने 1 to स्टार हो गया। तो वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 to स्टार है ये, इधर है MAKT का 1 to स्टार रिलेशनशिप है। अभी हमको क्या चाहिए इसमें, तो 1 to स्टार है तो हमको चाहिए बस EN लैंग्वेज का। तो जब हमको EN लैंग्वेज का चाहिए तो हम इसमें फिल्टर डालेंगे, फिल्टर डालेंगे। विदाउट फिल्टर आपको ये काम नहीं करेगा, जैसे वेयर कंडीशन में डालते हैं तो ये फिल्टर डालना पड़ेगा आपको, तब आपको एक्यूरेट मिलेगा ये वाला, करेक्ट। अब EN तो आपको मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको हार्ड कोडेड करना होगा, करेक्ट। तो आप वो फिल्टर ऐड करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे ऐड करना है। तो अभी जैसे मान लीजिए इसको मैंने रन किया, डाटा प्रीव्यू, ये आ गया आपको हेडर, इसमें मैंने आइटम का भी डिटेल दिया हुआ है, इसलिए डबल लाइन आइटम आया। और इसका आप एसोसिएशन देखेंगे तो आइटम आइटम में मल्टीपल्स है, 4 बार आ गया, राइट। यस। डुप्लीकेट आया, राइट। ये डुप्लीकेट हाँ, डुप्लीकेट आ रहे हैं ना ये। 3। आ गया। अभी जैसे मान लीजिए कस्ट है, कस्ट में आपको 2 लाइन आइटम आया, करेक्ट, जबकि इसमें भी आपको 1 लाइन डुप्लीकेट आइटम, है। हम्म। करेक्ट। 1-to-1 रिलेशन है। तो हम क्या गलती कर रहे हैं इधर पे, हम ये गलती कर रहे हैं कि ये जो डाले हैं ना हम लोग, दोनों टेबल में से डाल दिया। दोनों टेबल से डाले हैं। अब आप चेक हम्म। करोगे इसको, ये प्रॉपर काम करेगा। देखिए अभी कुछ वार्निंग दिख रहा है मैसेज एसोसिएशन में, ये आया एक वार्निंग। ये वार्निंग जो है आपको सर्च हेल्प डालने के लिए बोल रहा है, सर्च हेल्प नोट इनहेरिटेड। सर्च हेल्प क्रिएट करके वो बाद में बताता हूँ सर्च हेल्प कैसे डाला रहेगा, वो भी है फीचर्स। तो अभी रन किया, अभी देखिए करेक्ट करेक्ट आया, राइट। अभी इसका मैं एसोसिएशन
में आपको 2 लाइनें करना है, करेक्ट। और इसका एसोसिएशन में कस्टमर डिटेल देखो, सिंगल लाइन आइटम आएगा, करेक्ट। यहाँ तक हाँ यहाँ तक ठीक है, ये परफेक्ट है। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, अब जब आप और एक एसोसिएशन आप चाहते हो कि MAKT का भी आए और इसका, लेकिन मटेरियल आपका, और रूल क्या कहता है, रूल कहता है आपको BBAP से इसका यहाँ डालना है, राइट। BBAP डालू मैं इधर, फाइल पुट BBAP, तो इसमें है ही नहीं, राइट, तो ये तो एरर देगा, राइट। तो हम अगर BBAP से डालें, इससे तो नहीं डालेंगे, डालना पड़ेगा, मान लीजिए if I am putting a last name, because this material is available in item, correct, ठीक है, तो भी एरर है। अब क्यों एरर है, करेक्ट, हेलो, this is correct, right, on I am putting item material and this is correct join, but still I am getting error, why, because in association I am taking data from BBAK, पहले वो BBAK से डाटा लेके आता है, करेक्ट। हाँ BBAK में हमारा मटेरियल है नहीं, तो वो ये जो आउटपुट एसोसिएशन क्या करता है, वो आउटपुट से लिंक करता है। यहाँ पे आपका है नहीं, तो ये अगर मान लीजिए मैं मटेरियल डाल दिया है, करेक्ट, हम्म। तो करना चाहिए, हाँ तब करेगा, लेकिन उसके लिए सिंटैक्स क्या है, आपको प्रोजेक्शन है, तो वो प्रोजेक्ट करेगा, इधर से उधर प्रोजेक्ट करेगा, प्रोजेक्शन अच्छा प्रोजेक्शन करेगा, वो इधर से उधर प्रोजेक्ट करेगा, और हमको ये, क्योंकि जो आइटम जो हम लास्ट में डिस्प्ले करेंगे आउटपुट में, यहाँ से वो प्रोजेक्ट करेगा। हम्म। अब जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे, तो अब मटेरियल आया, यहाँ बस 2 लाइन आइटम आया है, ओके। सो डुप्लीकेट तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। अभी बस इसमें आपको मटेरियल नहीं आया, अच्छा मटेरियल नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने उसका प्रोजेक्शन ही नहीं किया हूँ। प्रोजेक्शन करने के लिए इसको डालना होता है, ये प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, एसोसिएशन, एसोसिएशन लिंक करना रहता है, तो ऐसे करते हैं। तो जब लिंक हो गया प्रोजेक्शन, तो अभी यहाँ है इसको MAKT, अब देखिएगा MAKT में इतना सारा आ गया, राइट, हम्म 1 स्टार रिलेशन है, करेक्ट, तो हमको इतना नहीं हम्म। चाहिए, बस इंग्लिश चाहिए। अब इंग्लिश देने के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में है यस RAS इक्वल टू इंग्लिश, ये SPRS क्या है अंकुर जी? लैंग्वेज, ये देखो, अच्छा मतलब डिस्क्रिप्शन देने के लिए आइटम्स का। मेरा क्या है, ये क्या एरर आ रहा है? ये एरर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन इज नॉट यूनिक, LIS नीड। यूनिक नहीं है, LS नीड टू बी असाइन,
आपको पहले वो शायद डिस्क्रिप्शन फील्ड भी देनी पड़ेगी, वो MATNR भी देना पड़ेगा ना शायद। DESC ओके .MATNR देना पड़ेगा शायद। डॉट अब क्या एरर है? अभी भी वही है। नहीं, ये DSC.MATNR में दे दीजिए ना अभी, अभी SPRS ऊपर ही। सही है SP नहीं, पहले .MATNR के बाद आएगा ना। हाँ डॉट MATNR के बाद डाला हूँ। तो आप पहले डालते हैं बाद में नहीं डालते। हम्म। अरे सिंटेक्स गड़बड़ है तो किया था। ओके ओके एक चीज भूल गया। हाँ एस मैकेनियर वो नीचे से हट जाएगा ना, जो आपने एक और लगा रखा है। क्या लगा रखा है? जो आपने DESC 2 बार दे रखा है ना, वो नीचे वाला हटा दीजिए एक बार। उससे एक मिनट हम्म। पेन किया था इसने, ये है, ऐसे ही किया हुआ है। SPRAS 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 रिकॉर्ड आता हूँ। PES मटेरियल मटेरियल नंबर इधर है। इसको X वेब चाहे मैं KPX आउटपुट से लिंक होगा। ओके इसका सब काम कर रहा है। ठीक है हाँ, इसको कैसे फिल्टर आउट करना है वो देखते हैं। अभी हम देखते हैं ये मेन है डॉक्यूमेंट फ्लो। इसमें भी आपका बिलिंग
और इनवॉइस डिटेल सब रहेगा। तो हम सेल्स ऑर्डर का और देखना चाहते हैं, राइट? उसको मैं बताता हूँ अभी, हाँ, कैसे करना है। ठीक है। वाला है ऑप्शन, राइट पर बंद कर, इसको मिक्सिंग हो रहा है, इसको पहले कंप्लीट कर दें। सो इधर पे हमारा क्या है, पीपीएटी रिपोर्ट आ रहा है आपको, केटी डॉक्यूमेंट फ्लो में जाओगे ना आप, तो आपको बहुत सारा आएगा डॉक्यूमेंट। इसमें आपको देखिए आ रहा है ना बहुत सारा, इसमें बिलिंग है, इनवॉइस है, पूरा डॉक्यूमेंट फ्लो है। सो इसमें ओनली आपको अगर इनवॉइस चाहिए तो आपको कुछ फिल्टर करना पड़ेगा। जैसे भी मैं फिल्टर ट्राई करने का कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था। वो बिकॉज इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन किया हुआ है, राइट? तो मे भी शायद प्रोजेक्शन के लिए वो काम ना करता हो, क्योंकि ये रिकमेंड ज्यादातर किया नहीं जाता है, बहुत कम रिकमेंड किया जाता है। इसकी वजह से ना हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ प्रोजेक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, मेन टेबल भी ये, वो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, प्रोजेक्शन में हम लोग फिल्टर ऐड कर सकते हैं, वही मैं कल भी ट्राई कर रहा था, मैं उसकी माइंड से हम्म। तो क्यों नहीं हो रहा है फिल्टर। तो इसका मैं दिखाता हूँ कैसे फिल्टर होता है, अगर विदाउट प्रोजेक्शन कैसे फिल्टर आउट करते हैं। यहाँ पे है सिंटेक्स, क्या यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये एक्चुअली व्यू के अंदर किया हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है, वो वाला किया हुआ है। यहाँ पे एरर तो इधर भी आया है। एसोसिएशन को देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो ये इसको एड ऑफ हो गया। अभी जो मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट, वो एक्सप्रेशन। इसमें इसको क्या करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। पाथ एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करने वाला है ना। वन इज टू वन, ओके, यहाँ वन इज टू वन है। एक मिनट, इसको हम लोग ना, वन सीडीएस व्यू वी कैन कंज्यूम इन अदर सीडीएस व्यू, वो कैसे करते हैं? यू हैव टू राइट क्लिक दिस, ओके। एक बार आप इसका बता रहे थे ना पहले, ये वाला तो बता दो। नहीं, वो पाथ एक्सप्रेशन वाला मैं बता रहा हूँ। पाथ एक्सप्रेशन एक्चुअली इधर नहीं होता है, वो इसके अच्छा। अंदर होता है। लेकिन हाँ, यहाँ भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। हाँ यही हो जाता है फिल्टर आउट, क्योंकि मैं मेरे को जितना आइडिया है। फिल्टर आउट हो सकता है। फील्ड टाइप हम कंट्रोल और पीडीएफए, राइट, इधर भी मिल जाएगा। ये है पी पी टी वाई पी, राइट, पी पी टी वाई पी।
और वाई पी अंडरस्कोर एन यू है। हो गया शायद। या ये हो गया, ये बराबर काम करेगा फिल्टर। अभी इसको मैं एक्सिक्यूट कर रहा हूँ, बस मटेरियल में काम नहीं कर रहा है प्रोजेक्शन वाले, तो मैं चेक करता हूँ। 89181110। हाँ अभी मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ। अच्छा मेरा प्रो अभी तो मैंने ये क्रिएट किया राइट, लेकिन मेरा ये नहीं आया। ये सब भी यहाँ रिकमेंड किया नहीं जाता है, बेसिक सीरियस व्यू में नहीं किया जाता है, इनसाइड किया जाता है। ओके, क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, डुप्लीकेट आ जाता है right? अब तो समझ गया ना, जैसे ये आया, अभी मैं इसको एक्सिक्यूट करूँ, यहाँ में तो फिल्टर में डाला हूँ, लेकिन देखिए आउटपुट क्या आता है। करेक्ट, आ गया इसको काम किया। एक तो सर मैं सॉल्व एक तो मैंने ग्रुप दे दिया और ईमेल मोड मैंने इसको आईडी दे दिया। नहीं आ रहा है। 140 एन है। मैंने फिल्टर में अभी ग्रुप नहीं दिया था पहले, एक बार मैंने बट अभी ये सेल टू बेल में आ रहा है। अभी जब तो इसको जीरो से देता हूँ तो ये चेंज हो गया यहाँ पे। कॉल कर रहे हैं। अच्छा कुछ इसमें गलत कर रहे हैं अपन, ये वरना आता है ये इधर ही। हाँ, ये आता है वो आपको जब आप उसको पाथ एक्सप्रेशन यूज करते हो तब आता है, यहाँ पे शायद थोड़ा प्रॉब्लम देता है। यहाँ पे देखिए यह ब्लैंक आ रहा है राइट, क्योंकि ये जो हम्म। फिल्टर कर रहे हो आप इस लेवल पे कर रहे हो, मेन लेवल पे। अच्छा। करेक्ट, मेन लेवल पे आप फिल्टर कर रहे हो, तो यहाँ पे तो वो ब्लैंक आएगा, वही फिर कॉलम लेके आएगा, रेडी बस रख तो रहा वो हूँ कॉलम मतलब ठीक है, ब्लैंक आ रहा तो है, बैलेंस शीट में वो है राइट। दो अलग अलग अभी रिकॉर्ड मान हम्म। लीजिए इसका मैं, ये देखो ये आपका इसमें है नहीं कोड राइट, मैं इसका भी यूज करता हूँ राइट, मान लीजिए इसको भी यूज करता हूँ राइट। ये मतलब कोई कोई कॉलम चाहिए आपको फिल्टर करके, आपको मेन हेडर में चाहिए तब लाते हैं, लेकिन उसमें डुप्लीकेट होने का चांसेस रहता है। अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तो आप लाइए, जैसे ये पोस्टनर है डुप्लीकेट है, लाइन आइटम आइटम में वो डुप्लीकेट आ रहा है राइट। तो ऐसे बेसिकली क्या करेंगे, वो एसोसिएशन आइटम डिटेल जाना जाना रहेगा उनको, तो वो एसोसिएशन में आइटम में क्लिक करके ही जाएंगे राइट। अभी मान लो जैसे कोई भी एप्स है तो उसमें आपको आइटम डिटेल में जाना है, तो वो हेडर में कुछ डिस्प्ले थोड़े ना करेगा, वो आइटम में ही करेंगे राइट। देखिए अभी एम आया, अभी ये देखिए रिपीट हो गया है, ये मैं दिखाना चाह रहा था, रिपीट हो जाता है ये। करेक्ट, तो इसलिए हम लोग जाते हैं पाथ एक्सप्रेशन से। आ गया पाथ एक्सप्रेशन, ये है पाथ एक्सप्रेशन। करेक्ट, पाथ एक्सप्रेशन। और कभी कभी क्या होता है ना, ठीक है, ये आ गया अभी, इसमें आपको डुप्लीकेट इसलिए आ रहा है वो डुप्लीकेट, तो इसको कमेंट करके नहीं रहने देते हैं। चलिए इसके टॉप ऑफ इसको हटा देते हैं। अब पाथ एक्सप्रेशन में जाते हैं, ठीक है। अब पाथ एक्सप्रेशन जैसे क्रिएट करते हैं तो इसका हम लोग न्यू मतलब इसका टॉप ऑफ ऑन टॉप ऑफ द बेसिक CDS व्यू आई विल क्रिएट another CDS व्यू which will invoke
दी डाटा। हाँ हेलो। हाँ पापा। नहीं नहीं नहीं, काम कर रहे बोलिए। घर पे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। सो हाँ, कहाँ पे हम? ओके 6 राइट। इसमें आपको न्यू करते थे, क्या कर सकते हैं, ये याद है यार आपको। न्यू डाटा डेफिनेशन, चलिए न्यू डाटा डेफिनेशन, हाँ ये आ गया राइट। अब ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट लिया है इसका। ये बहुत यूजफुल रहता है आपको। बेसिक सीडीएस व्यू गेट कर लिए। बेसिक में आप हेडर आइटम एसोसिएशन की देखिए, हेडर आइटम जो भी चाहिए आपको राइट, उसमें से उसके करेक्ट। हेलो। हाँ समझ गया मैं। ये सब। तो जब नेक्स्ट सीडीएस व्यू क्रिएट करोगे आप, तो हाँ अच्छा देखिए, अब इसमें देखिएगा, आपको जो जो हम लोग लास्ट नेम क्रिएट किए थे उससे आया, इससे आया, इससे आया, इससे एसोसिएशन ऑटोमेटिक ले गया ये एसोसिएशन। ये चीज दिख रहा है ये, माने वो हम लोग बेसिक क्रिएट किए एसोसिएशन, और यहाँ पे वो एसोसिएशन करके दिखा दिया, तो ये एसोसिएशन आपका है और ये फील्ड है। करेक्ट। इसलिए वहां पे हम लोग ज्यादातर ये सब नहीं लेते, आई हेडर में हेडर लेंगे, आइटम में आइटम लेंगे, जो भी है जैसा। करेक्ट। पैसा दे देंगे, और इसमें और एसोसिएशन भी आपका व्यूज क्रिएट करके डाला जाता है। मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको बीबीएपी में क्या है, बीबीएपी में ऑल फील्ड, ऑल फील्ड उठा रहे हैं। करेक्ट। करेक्ट। हाँ ये तो ऑल, हमको मान लीजिए 10 फील्ड उठाना है, तो हम लोग इसके लिए अलग व्यू क्रिएट करेंगे। इंटरफेस व्यू क्रिएट किए, वो इंटरफेस व्यू डाल दिए। कोई अलग के कस्टमर के लिए हम लोग एक व्यू क्रिएट किए, उसमें हम लोग यहाँ डाल दिए। एमएकेटी में हम लोग क्या करेंगे, एक व्यू क्रिएट करेंगे, उसमें हम ऑलरेडी फिल्टर डाल चुके हैं। क्या डाल चुके हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो हमको पूरा लैंग्वेज का लेके नहीं आएगा यहाँ पे। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग 5 व्यू क्रिएट किए, और वो 5 व्यू को हम लोग एसोसिएशन के साथ जोड़ दिए। यहाँ पे जोड़ के हम लोग हेडर आइटम सबको अलग अलग कर दिए। करेक्ट। उसके बाद हम लोग फिर पाथ एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। आप समझ गया ना कैसे होता है डिजाइन रियल टाइम में, क्योंकि ऐसे ये तो थोड़ा बहुत डुप्लीकेट वैल्यू लेके आएगा। क्या हुआ, एक्सीक्यूट हो रहा है? या सो इसमें देखिए डुप्लीकेट लाइन आइटम लेके आया, क्योंकि हम लोग का मेन सीडीएस व्यू में डुप्लीकेट आ रहा था, तो यहाँ पे भी आएगा ये। और जैसे आपको पीबीएफए में जाएंगे, यहाँ पे भी आपको आ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, होना ही चाहिए, होता है अवसर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर का क्या आ रहा था, अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया ना, जैसे ये 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। ओपन एसक्यूएल यहाँ पे तो ठीक है। अभी आप ऐसा रिपोर्ट लेके आना चाहते हो, मान लीजिए आप ऐसा रिपोर्ट लेके आना चाहते हो जिसका कस्टमर रहेगा, उसी का सेल्स ऑर्डर आएगा। ऐसे तो बेसिकली सबका कस्टमर रहता है, लेकिन कुछ ऐसा रिपोर्ट होगा जिसके आपको इनर जॉइन लगाना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो। यहाँ पे आप इनर जॉइन लगा दिए, तो ये आपको इनर जॉइन लेके आएगा। इनर जॉइन का सिंटेक्स कैसा है? inner join with name 1। इसको अभी रन करो मैं। पापा आ रहे हैं। हाँ? पापा आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। तो इधर पे
अच्छा, तो आउटपुट में इसमें कस्टमर नेम आया, करेक्ट। ये हमारा सीरीज व्यू, मेन सीरीज व्यू में मैं लाना चाह रहा हूँ तो लेके आया हूँ। मेन वाले को क्या करूँ ना, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसमें थोड़ा R&D कर करके चार्ज में लगाऊं। हाँ ठीक है अंकल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओवरराइड का मतलब ये होता है कि जो पुराना नंबर था वो नए नंबर से ओवरराइड हो जाएगा। तो हेलो वांट टू मेक समथिंग, लेट्स से आई वांट टू ऐड समथिंग टू दिस हेलो। पुराने बोलिए, नंबर में, टू क्या है, यू बोलिए। नोट दैट नंबर। हाँ ठीक है, आप कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेन मेन जो मेन आप सीरियस व्यू है, ओवरराइड मोड में डालते हो, एज आई हम्म। मेंशन ओवरराइड, व्हाटएवर द मैंने डेटा चेंज ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल बी ओवररिटन बाय द जो स्ट्रिक्ट लेवल ये आपके ऑलरेडी चेंज हो रहा है, यहां तक वैल्यू आ राइट। जाएगी हमारे पास। एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। ओके, हाँ हाँ। हटा देंगे तो मेंस में हमने इसको रिमूव कर दिया, करेक्ट। तो अभी रिमूव करके मैं अभी वापस ट्राई करूंगा। अब तो एरर, एरर, अच्छा, MAKT प्रोजेक्शन, तो एक activity है, ऐसा क्रिएट ही कर दिया हूँ। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत। जब एक यूज कर रहा हूँ तो बाकी यूज करने लगते हैं। इसका मैं ज्वाइनिंग इसके साथ डाला हूँ ना। तो कुछ नहीं, बस क्रिएट कर दिया हूँ ऑलरेडी। उसका डिपेंडेंसी है इसके, यहाँ पे आप कह रहे हैं। या ओके, एक्टिवेट मटेरियल कुछ करना ही पड़ेगा, तब जाके वो लिंक कर पाएगा, नहीं तो नहीं लिंक कर पा रहा है। इसका ये जो यूज किया हो ना प्रोजेक्शन, इसलिए प्रोजेक्शन में दिक्कत होता है थोड़ा। पर ये तो इसलिए आपने उस CDS व्यू के ऊपर एक और नया बनाया ना, उसमें भी दिक्कत होती है। नहीं, राइट। तो इसमें जो आपको मटेरियल नंबर है, ये मटेरियल नंबर के बेस पे आपको प्रोजेक्शन किया, एसोसिएशन किया हुआ है, राइट। तो अभी मान लीजिए मैं ये चीज हटाऊं, लेकिन उसमें वैल्यू नहीं है। अगर मैं मतलब वो एंट्री मैंने एरर रिवर्स कर देगा, दिया सारी, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है मैं मटेरियल के ऊपर डाला हूँ, राइट। तो हाँ हमको हाँ। ये एसोसिएशन हटाना पड़ेगा, राइट। या तो मैं अदर अलग इंटरफेस क्रिएट करूं, उसमें मेरा जो हेडर है BBA के, उसको लेके आऊं, उसका एक अलग से क्रिएट करके यहाँ पे फिर मैं CSV के साथ ये प्रोजेक्शन ना यूज करूं। प्रोजेक्शन अवॉइड करना चाहिए यूज करने में, ये सही बात है। ये रेयर केस में आपको जो फाइनल CDS भी होता है ना, उस पे आप यूज कर सकते हैं, ओके। करेक्ट। फाइनल CDS व्यू में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंसी रहता है ना, तो उस पे आप न ये हटा सकते हो ना ये हटा सकते हो। अब जब भी मैं नया CDS व्यू क्रिएट करूंगा, इसको इन्वोक करूंगा ना, मैं ये हटा सकता हूँ ना ये हटा सकता हूँ। अब ये हटाऊंगा तो इस पे एरर देगा, ये हटाऊंगा तो उस पे एरर देगा, क्योंकि दोनों से दूसरे डिपेंडेंसी है। तो मेरा बेसिक फंडा वो ये भी है, चलो ठीक है। लेकिन मेरा बेसिक फंडा ये है कि मान लीजिए अभी कुछ फील्ड है, मैं जॉइन से बाहर लाके मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, राइट। तो मैं मान लीजिए कस्टमर लेके आया, तो उसको मैं इनर जॉइन मार दिया। जैसे जैसे अगर मैं मटेरियल यूज नहीं कर रहा होता ना, तो उसमें भी मैं डाल सकता था। अभी जैसे मान लीजिए इसमें मैं डिस्क्रिप्शन हो गया, ये हो गया, ओके, आइटम हो गया, ठीक है। तो एक कस्टमर है, कस्टमर से मैं कुछ फील्ड लेके आके मैं
और मेरा मेन सीडीएस व्यू में डिस्प्ले करना होगा। ये पहले नहीं था, राइट? अभी मैंने ऐड किया है नेम वन। कस्टमर भी डिटेल मुझे चाहिए, मटेरियल, पोर्शनर, ओनर, नहीं तो आ ही जाता है। इस कस्टमर का नाम मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ रन करके। इसको हटा दो पहले, इसको कॉमा स्लैश, ओके, एक्टिवेट। मैं रन करके दिखाता हूँ। देखिए पहले क्या आ रहा था, सेल्स ऑर्डर, उनार, पोस्टनार, मटेरियल। मैं चाहता हूँ कि मेरा मटेरियल का डिस्क्रिप्शन भी इधर आए, और ये मटेरियल कस्टमर का डिस्क्रिप्शन, कस्टमर मेरा ये है 100, इसका डिस्क्रिप्शन आए, लेके आना चाह रहा हूँ, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा मैं इनर जॉइन से, इनर जॉइन डालूंगा। नहीं तो वो लेफ्ट आउटर जॉइन डायरेक्ट लेंगे ना, तो लेफ्ट आउटर जॉइन वो कंसिडर करेगा। तो अभी जैसे आप इस पे जाओगे, सॉरी, सो SQL, तो सो इसमें नेम वन में मेरा क्या डाला है, इनर जॉइन मारा है, करेक्ट? इनर जॉइन सही रहता है, एक्यूरेट डाटा लेके आएगा, डुप्लीकेट नहीं लेके आएगा। तो अभी जब वापस इसको रिफ्रेश करूं तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कॉलम ऐड किया है, करेक्ट? तो हमको वापस ट्रिगर करना होगा, तो ट्रिगर अगेन। तो अभी नेम वन आ गया, ये कस्टमर का नाम है आपका डोमेस्टिक यूएस कस्टमर 8। सो ये आया। अभी इसमें मैं क्या चाहता हूँ, इसका भी कुछ वैल्यू, फिल्टर, फिर क्या था, ये है आपका PPTYP, PPTYP अंडरस्कोर मेरा भी था, राइट? ऊपर है, ये आया। ये है आपका, ये जो मैपिंग कर रहे थे, राइट? इस पे मैपिंग कर रहे हैं हम हाँ लोग, BLN पे कर रहे थे। ये है क्या, एन पे कर रहे थे, एन। एन ना? कौन सा नंबर बता रहे हम्म। हो? तो वो लोड करना ही अननोन, ओके, 1 मिनट। VPTYP। और यहाँ ये है नहीं हो रहा, VBTYP। मैच नहीं हो रहा ना। तो वो मतलब हमें फिर अभी इस क्वार्टर के लिए जो उसमें लोड करना पड़ेगा। अंडरस्कोर B, अंडरस्कोर B, अंडरस्कोर B, ओके। हाँ। एरर ही आ रहा है अभी बीच में।
सलाम लोगों है। ये ना ये टेस्ट देखिए एक्सप्रेस मोड किसी में है क्या? या ना कुछ तो गलती था स्पेलिंग शायद। ओके, मालूम नहीं स्पेलिंग गलती तो क्या है। देखिए अभी क्या है। हाँ, सो मैं डॉक्यूमेंट इसको रन करके दिखाएंगे तब जाकर क्लियर होगा। ये इनवॉइस आया। अब इसमें बहुत सारा इनवॉइस डुप्लीकेट आया ना, डुप्लीकेट आ गया तो बस ओपन एक डुप्लीकेट आया। अब मेन में तो उतना ही आएगा, इसका मेन वाला तो हट ही जाएगा। ओके, सो अभी मुझे चाहिए इस पे और फिल्टर चाहिए, कहाँ गया? सॉरी, इसको नहीं बंद करना चाहिए। हाँ, ये है। डाटा प्रीव्यू। अब मैं इसमें ये पे, हाँ इसमें अभी POSNB में मुझे फिल्टर चाहिए होगा। POSNB और PSNR दोनों में फिल्टर कर देंगे तब ये तो कम हो जाएगा। तो इसमें मैं पहले कौन सा फिल्टर डालते हैं, जैसे POSNB POSNB इक्वल टू प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब हमने बताया था, ये वाला जो आपको PLN है इसमें, तो ये पोर्शनल है ना, ये वाला फील्ड इसमें आएगा। प्रोजेक्शन अब देखिए क्या आता है। ओपन विथ डाटा प्रीव्यू, कम हुआ, राइट, माने इसका है नहीं, इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए एम्प्टी आया है। इसका इनवॉइस जनरेट हुआ है इसलिए आया है। करेक्ट, 2 लाइन आइटम, पहले से 2 लाइन आइटम था इसलिए उसका आया है। तो ऐसे हम लोग मेन फाइनल CDS व्यू में कर सकते हैं, कंपेयर करके फिर। और इसी को बोलते हैं पाथ एक्सप्रेशन। ठीक है। हाँ समझ गया। हाँ तो उसको बढ़ाना है। सॉरी, मान लीजिए और ये आइटम होगा, आइटम। ओके, एक बार ये ट्राई करते हैं, ये आता है क्या एक्सेस? हाँ, सो मैं ऑफलाइन जाता हूँ, डाटा प्रीव्यू ये है। ये आपका इनवॉइस का लाइन आइटम है, 1020 तो है 2 लाइन आइटम है। और इसका ऐसे ओपन होगा, जनरली जैसा ओपन होता है, लेकिन इसमें आपको डुप्लीकेट आ रहा है, इसमें डुप्लीकेट आ रहा है। चलिए इसको और रिफाइन करते हैं धीरे धीरे।
ठीक है ना? ओके, हेलो, ये सब कवर कर दिया हूँ। और क्या बचा था? अच्छा, ये भी आउटर जोन को इनर जोन कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेटिव पाथ एक्सप्रेशन, ये हो गया। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम लोग इस पे डाटा को कैसे और रिफाइन और ये करना है, इस पे काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? इसमें आपको देखिए ये इनर जॉइन मारा हुआ है। इनर पीओ सेशन, इसमें अगर हम इनर पीओ सेशन डाल दें तो क्या आता है? इनर जॉइन में कन्वर्ट हो गया। और डुप्लीकेट आया। हेलो, या हेलो, हेलो सक्षम, ऋषिकेश, हेलो ये 0Z पे होगा। हेलो 0Z, हाँ वहाँ पर है, 0Z पर है लेकिन ये। तो टिल नाउ क्लियर राइट? ये डॉक्यूमेंट, सक्षम, हाँ नहीं नहीं, बैलेंस शीट में ही हेलो सक्षम, साइड वाली यस बता रहा हूँ। हेलो टिल नाउ यू हैव क्लियर राइट? नहीं, You are clear, ऊपर correct. सेम सेम हाँ, वाली, ये देखो बिल्कुल। ये ठीक है, साइड हाँ। ये वाला 4472। Now concept of association is clear right? हाँ एसोसिएशन क्लियर है अभी। Okay. So हम्म। I will explain more detail association. 0F पे हो गया स्वागत, ये वाले 0F पे क्या ओके I will share this Word document. हाँ आप शेयर कर दीजिए। Okay, you can just stop the recording. हम्म।